Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Recently, I've completed my KPI practitioner course from Australian Institute and psychometric assessment from UK. That's why we invite amazing guests for you कि आप बहुत अच्छा सीख सकें. Because हम किताबों से सीखते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर ऑफिस में बैठ के सीखते हैं. लेकिन जब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको एक आइडिया, डायरेक्शन और करेक्ट पाथ आपको पता लग जाता है. इसीलिए हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने डेकेड्स, 2 डेकेड्स, 1.5 डेकेड्स बड़ा ज़बरदस्त काम किया होता है. बिकॉज उन्होंने अपने हाथों से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होता है. इसीलिए हम उन गेस्ट को कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म द रंजीत कुमार शो पे आएँ और लोगों को बताएं कि आप किसी भी पोजीशन पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. इसलिए आज हमने दावत दी है मिस समिता बाई, नो डॉक्टर समिता बाई. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज हमारे शो पे आए हैं. और अगर कोई भी एक शख्स आपसे एक लव सीख जाए, मैं समझता हूँ ये सदका जारिया है. तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं और आपने PhD का सफ़र कैसे शुरू किया, शुरू से लेकर आखिर तक. ओवर टू यू नाउ. Hello everyone, this is Dr. Samita Bai. I am really feeling privileged to be part of this show today with Mr. Ranjit. Currently I am working as an assistant professor at Department of Computer Science, Salim Habib University, which is located at Korangi Creek. So basically, as Ranjit asked me about my PhD, so I would start from before what I did before my PhD. Actually, I was always passionate about computers. And computers were the technology that always attracted me. And fortunately, I was position holder in my college life, and everybody wanted me to pursue medical science instead of computers or engineering, because everybody thought girls are made for a medical field. But for me, this was not true, because I wanted to pursue engineering field, so I chose software engineering as my bachelor's. And I did my bachelor's and master's from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. And there I did lecturership as well for a few years. And then after my marriage, I started PhD at IBA Karachi. And I was fortunate enough to clear the aptitude test and become part of IBA. I learned a lot from IBA. It was a great experience being in the supervision of Dr. Shakil Ahmed Khoja. I learned a lot. And I've completed my PhD successfully from IBA. It was tough because I was newly married. I had kids in between. But the journey was tough enough, because at IBA they have very rigorous and rigid policies. They do not give you degree easily. Right. So it is a process that make you refined more and more. So I feel privileged being a student of IBA, and today I feel so good that after all those difficulties and things they came into my way, I'm successful. Absolutely yes. समिता, बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, लेकिन एक बात आपने बड़ी पावरफुल कही कि जो हर्डल्स थे, यानी कि एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है शादी के साथ पढ़ाई को मैनेज करना, शादी के साथ जॉब को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना. लेकिन बहुत सारी ख़वातीन से जब मेरी बात होती है, स्पेशली डॉक्टर्स, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक होता है, कहते हैं हम बच्चों की वजह से अपना करियर परसू नहीं कर सकते, या फिर वो मियाँ इतना सपोर्ट नहीं कर रहा. आपके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स था कि समिता 15 साल से सक्सेसफुल लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत मुश्किल प्रोग्राम ढूंढा जिसका नाम था कंप्यूटर डिग्री प्रोग्राम. आसान होता है ना, कोई हम कहते हैं मार्केटिंग में कर लिया, HR में करें, बहुत आसान होता है. कंप्यूटर जैसी फील्ड, शादी को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, व्हाट वाज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू फॉर अमेजिंग सक्सेस? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आपकी अपनी डिटर्मिनेशन है. जब तक आप अपने फैसले पे डट के नहीं खड़े हैं ना, नोबडी विल स्टैंड फॉर यू. क्योंकि मसला ये है कि आप कंफ्यूज होंगे अगर कि कैन आई डू और नॉट, तो अदर्स विल से नो यू कैन नॉट. व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एट IBA, तो माई ओन मदर, माई बायोलॉजिकल मदर, माई ममा, शी सेड, बेटा यू आर न्यूली मैरिड एंड आई थिंक PhD नहीं करो IBA से, बहुत मुश्किल होगा. ठीक है.
एंड सेम वर द वर्ड फ्रॉम माई हस्बैंड. हाँ. ही सेड कि नहीं एंड बहुत मुश्किल होगा, हमारी फैमिली भी ज्वाइंट है, हमारे घर में सोशल गैदरिंग्स होती रहती हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगी इतना शादी के बाद. बिल्कुल सही. वाई डोंट यू डू PhD फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी. हाँ. तो मैंने कहा देखो मैंने बैचलर्स वहीं से किया, मास्टर्स वहीं से किया, आई वॉन्ट सम एक्सपोजर. लाइक आपको होता है ना, आप डिफरेंट जगह पे जाते हो, आप चैलेंज तो हो, और मुझे पता है सब वहाँ कैसे हो. बिकॉज मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी में ऑल प्रोफेसर्स वर काइंड ऑफ माई यानी कुलीग्स थे, फैकल्टी मेंबर थी मैं वहाँ पे, तो सारे कुलीग्स थे, तो मुझे वो पता था, मुझे वो रिगर वो रिजिड मैं जो चाहती थी वो मुझे शायद ना मिल पाए. तो मैंने एक चैलेंज लिया, मैंने कहा नहीं आई वॉन्ट टू डू. तो जब मैं एक डिटर्मिनेशन के साथ खड़ी हुई ना, तो एवरीबडी वाज लाइक ओके नाउ शी विल नॉट गो बैक. इसने डिसाइड कर लिया है, अब इसे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे. फिर आप उनको भी मेंटली प्रिपेयर करते हो कि भाई अब मेरे एग्जाम्स है, मुझे इतना पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, अब मैं ये गैदरिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी, अब मेरी ये चीजें हैं. तो जब आप खुद करते हो ना, फिर यू मेक पीपल मेंटली रियलाइज फॉर द थिंग्स कि भाई नाउ शी इज ऑक्यूपाइड एंड एवरीबडी नोज कि शी इज एट अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एंड शी इज डूइंग समथिंग, सो शी नीड्स सम टाइम फॉर हर एज वेल. तो ये आपके लिए पाथ बनता जाता है, लेकिन आप पहले वो पाथ चूज करो, पहला कदम उठाओ. जब तक आप यू विल नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप, तो तब तक वो नहीं हो सकता. सो फर्स्ट यू हैव टू शो करेज योरसेल्फ, राइट, एंड देन यू कैन आस्क अदर पीपल. लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड कि उन्होंने मुझे राउंड द क्लॉक सपोर्ट. बिल्कुल सही. यानी ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटा देख लिया बच्चों को, ऐसा नहीं है. नहीं. मैं देर तक भी बैठी हूँ, IBA 7-8 बजे तक भी बैठी हूँ. दे वर देयर Yes. to look after my kids. तो ये उन्होंने मुझे सपोर्ट दी है. So credit goes to amazing husband. Yeah. Credit goes to amazing सासू माँ. Yes. लेकिन हमेशा हम जब भी कैरेक्टर्स देखते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता, फसाद की जड़ होता है, या एक कैरेक्टर बहुत विलन कैरेक्टर होता है. आपकी लाइफ में दोनों कैरेक्टर्स प्ले अ वेरी पिवटल रोल बिहाइंड योर सक्सेस. आपने कहा अगर आप खुद डिटर्मिन्ड हैं, आपने कहा अगर आप मेंटली स्ट्रांग है और डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, पीपल विल रियलाइज नहीं यार ये कुछ करना चाहती है, इसको मौका दो. सो वो खवातीन जिनको लगता है कि हम पढ़ने के बाद ये दोनों तीनों लाइफ नहीं संभाल सकते, बस थोड़ी सी देर होती है, एक बार आप फैसला करें, आपके हस्बैंड अच्छे बन सकते हैं, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर सकते हैं. एक ब्रेक जिससे जाने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. समीता, चलो ठीक है, शादी वॉज वन ऑफ द हर्डल, यानी कि इट वॉज द पास्ट डिसीजन. लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ी, लेकिन आपने सोचा होगा PhD करनी है, रुकना तो नहीं है, फिर जॉब को टाइम देना, और जॉब में आपको पता है कि इट्स नॉट इजी, क्योंकि जब आप पढ़ाने लगते हो तो आपको एडमिन के काम करने पड़ते हैं और पूरे माहौल को देखना पड़ता है. जॉब, PhD डिग्री और घर को मैनेज करें, तीनों हर्डल से. समीता भाई, व्हाट इज अगेन अ ड्राइविंग फोर्स टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट इन कंप्यूटर डिग्री प्रोग्राम? कंप्यूटर वाला बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है, आपको कैसे नहीं लग रहा होगा? अच्छा, इसमें लाइक लाइफ समटाइम्स बिकम सो काइंड इनफ, बिकॉज जॉब का ये था कि आई टुक स्टडी लीव फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी फॉर परसुइंग माई PhD. और IBA में देयर वाज अ पॉलिसी दैट आपको जो ना एक ही कोर्स दिया जाता था टू टीच, उसके अलावा वो हमें कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी. सो उसके लिए ट्वाइस अ वीक हमें क्लास लेनी होती थी 1.5 या 3 घंटे की. ठीक है. तो इट वाज मैनेजेबल, बिकॉज आप क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं, तो हम ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट करते थे जिनमें हमें थोड़ी सी ग्रिप हो. हम नए नए कोर्सेज नहीं सेलेक्ट करते थे. तो थोड़ा सा जो जॉब वाला पार्ट था वो ईजी था ऑफ कोर्स. बट PhD जो आप कह रहे हैं, उसमें आई विल टेल यू कि इतना मुश्किल है पाकिस्तान से PhD करना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बिल्ट इन रिसर्च ग्रुप्स नहीं है. आप जब बाहर जाते हो ना PhD करने, तो उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके रिसर्च ग्रुप्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं. जो नया स्टूडेंट आता है ना, उसके साथ वो चिप इन हो जाता है. yes. कि एक रिसर्च ग्रुप पहले से ही काम कर रहा है, उसमें से ही कोई प्रॉब्लम लेकर आप उसका कोई एल्गोरिथम बनाते हो, उसी चीज़ पे, उसी डेटा पे आप कोई ना कोई अपनी चीज़ करते हो. यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट योरसेल्फ. सो स्क्रैच जीरो से आपको स्टार्ट करना है. और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जो भी आइडिया लेके जाती थी वो रिजेक्ट हो जाता था. तो पहला जो आपका प्रपोजल डिफेंस का फेज है, उसको क्लियर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. कि आप एक नया आइडिया लेकर आओ, फिर उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी जो टेक्निक आप लेकर आ रहे हो वो भी नॉवेल.
तो ये बहुत मुश्किल है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। आपको मुझे याद है फिर जो है हम अप्रोच करते थे डिफरेंट रिसर्चर्स को, लाइक ओलाफ आर्टिग एक रिसर्चर है यूरोप में, उसको मैं ईमेल्स करती थी। उसके अलावा एंड्रयू एक रिसर्चर था, उसको मैं करती थी। तो डिफरेंट रिसर्चर्स को, काफ़ी रिसर्चर्स तो आपको रिप्लाई भी नहीं करते थे। ठीक है, आप ईमेल कर दे 2-2 3-3 हफ्ते आपको रिप्लाई नहीं आता था। बट दीज आर द टू जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, जो मुझे गाइड करते थे कि थोड़ा सा इस तरह से कर लो, यहाँ देख लो, ये ऑब्सलीट है फील्ड। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी कि आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में, बिकॉज एवरी टाइम द थिंग्स आर चेंजिंग। आप सोचते हो यार मैं ये काम कर लूँ, फिर आप देखते हो तो उस पर पहले से ही कोई ना कोई रिसर्च वर्क आ चुका होता है, उससे रिलेटेड वो चीज़ हो चुकी होती है। ये चीजें ऑब्सलीट हो जाती है, कंप्यूटर तो ओवरनाइट थिंग्स आर चेंजिंग, नए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, नए डेटा सेट्स पे लोग काम कर रहे हैं, चीज़ें जो है 1 मिनट में आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स के हंड्रेड्स ऑफ सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो उसमें कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और फिर ऑफ कोर्स इट वाज डिफ़िकल्ट। हम जो है अच्छा उसमें फिर प्रोग्रामिंग आपने सोच लिया, चले ये प्रॉब्लम है, अब आपने जो है उसका सोल्यूशन आप जब करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। अगर आपका डेटा सेट बड़ा है तो आपको उसके लिए फिर उतना GPU चाहिए, उतनी आपको वो रिसोर्सेज मेमोरी की और डिस्क की चाहिए। ठीक है, वो डेटा सेट आपके दिनों तक डाउनलोड नहीं हो रहे होते। आप लैब में बैठे रहते हो, आप देखते रहते हो कि यार डेटा सेट ही डाउनलोड नहीं हो रहा, आपके इंटरनेट स्पीड के इश्यूज होते हैं। सो देयर आर मेनी इश्यूज। तो आपका जो वो सेटअप, आप एक मशीन आपको जो बनानी होती है ना, जिसको आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इट टेक्स मंथ्स, वीक्स एंड मंथ्स। पहले तो आपको वो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, फिर उसके बाद वो आपको डेटा सेट चाहिए, फिर आप अपना जब एल्गोरिथम खुद डेवलप करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो इतने बग्स आते हैं, इतने एरर्स आते हैं। एक एक एरर को रिमूव करना, डीबग करना इज अ टास्क, वेरी बिग टास्क। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप गए, आपने टिक 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 प्रोग्राम लिखा, आपकी PhD हो गई। ये ऐसा नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एब्सोल्युटली। तो इट्स ये नहीं कहूँगी कि हमारी मंथ्स का एफर्ट्स है, एफर्ट्स ऑफ ईयर्स। तो आप पूरा दिन लैब में बैठे रहते हो, एक आपका जब डीबग होता है ना, अच्छा उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, फिर राइटअप। तो आप सोचें, अच्छा बाहर ऐसा नहीं है, बाहर आपका जो टीम वर्क हो रहा होता है ना, तो आपकी कोडिंग भी पूरा रिसर्च ग्रुप में डिफरेंट टास्क, अगर डेटा प्रोसेसिंग एक बंदा कर रहा है, ठीक है, बाकी अगर जैसे टास्क हैं वो डिवाइडेड होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो PhD कर रहा है वो बेचारा अकेला है, उसको खुद ही सारी अपनी बिल्डिंग बनानी है, एक एक जो है ना एक एक ब्लॉक खुद उसको रख के पूरा बिल्डिंग बनानी है। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। यानी अब आपको रिसर्च पेपर, अब एवरीबडी इज नॉट गुड एट राइटिंग रिसर्च पेपर्स, हर किसी की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर आप जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स, उसकी फॉर्मेटिंग, हर चीज़ उसको आपको देखना, रिसर्च करना, रिसर्च पेपर्स पढ़ना, अपनी रिसर्च के साथ अलाइन करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही होती है इस प्रोसेस में। इसका मतलब है देयर इज नो इजी कुकी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो ये सारे हर्डल्स जो हैं वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। समीता ने हमें ये बताया कि अगर इतना आसान होता तो हर शख्स PhD होता, इतना आसान होता तो शादी के बाद भी काम करना इतना आसान होता। आसान कुछ नहीं होता, एक डिटर्मिनेशन आपके पास होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, और एक मर्तबा ठान लो कि मुझे ये काम करनी है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका हस्बैंड, आपकी स्पाउस, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो एक अच्छा किरदार अदा करेंगे आपकी कामयाबी में। एक बार भरोसा अपने आप पे रखो, लोग आपको सलाम करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल दूंगा, देन वी विल मूव टू अनदर सेगमेंट। विराट कोहली का हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आज भी दूंगा। अगर वो ये सोचता कि यार मैं पहले 6-7 इनिंग्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, शायद वो फाइनल पे इतना परफॉर्म अच्छा नहीं करता। सबसे पहले उसने खुद पे भरोसा किया कि 3 लोग बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन कैप्टन का, टीम का और पूरी दुनिया का उस पर भरोसा था, आज ये लड़का कुछ करके जाएगा। फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, अदरवाइज बिलीव मोर देन यू ऑन योर सक्सेस, ऑन योर एक्टिविटीज एज वेल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और नए टॉपिक के साथ। आज बात होगी सभी तक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।